All right, let's get right into it. For millions of people in India, gratuity is more than just a bonus. It's a really important retirement benefit, a kind of financial thank you for years of service. Now, for the last 50 years, this entire system was run by one single law from way back in 1972. But that has all just changed. So today, we're going to break down the single biggest upgrade to India's gratuity law in half a century. So I want you to imagine this. You work at a company for, say, 20 years. You give them your best. And that big payout you're expecting at the end, it's completely up to your boss's mood that day. A gift, not a guarantee. Well, believe it or not, for a long, long time, that's exactly what gratuity was. It was just an optional act of kindness. But then, a huge shift happened, driven by the courts and labor movements. The whole idea of gratuity was transformed. It went from being a gift, something that was optional, to a legally protected statutory right. It became something an employee actually earns through their service. And that one single change in language, from gift to right, set the stage for everything that came next. To make sure this new right was applied fairly and consistently all across the country, Parliament had to step in. And that's what led to the creation of the Payment of Gratuity Act of 1972. This was the rule book, the foundation that would govern this crucial benefit for the next 5 decades. Now, this journey to a national law didn't happen overnight. You see, before 1970, it was still seen as that optional gift. Then, a huge Supreme Court case, the Indian Hume Pipe case, officially established it as an earned right. Following that, the state of Kerala passed its own gratuity law in 1970. But that created a lot of confusion, for companies that had offices in different states. So, to create one single, uniform system for everybody, the National Act was finally passed in 1972. The core of this 1972 rulebook was pretty straightforward. You needed 5 years of continuous service to be eligible. Simple. It mostly covered workers in traditional places like factories and mines. But, and this is important, it had some real teeth. Employers had to pay up within 30 days of an employee leaving. And get this, that money was protected. It couldn't be taken away by creditors to pay off your debts. And this slide shows you exactly how they calculated it. The formula was pretty simple. 15 days of wages for every single year you worked. That 15 divided by 26 part, it's just a simple way of representing 15 days out of a standard 26-day working month. You'd multiply that by your last drawn wage, which was your basic pay plus an inflation adjustment called dearness allowance, and then by your total years of service. Seems simple, right? But as we're about to see, that simplicity was hiding some pretty big problems. After 50 years, that 1972 Act, which was really designed for a totally different economy, started to show its age. You can think of it like an old operating system trying to run modern apps. It just couldn't keep up. The world of work had completely transformed, but the law was stuck in the past. And here are the major cracks that started to appear. First, the law had absolutely no concept of gig workers or platform workers, leaving millions of people in the modern economy completely unprotected. Second, a massive loophole emerged around contract work. Companies would hire people on contracts that ended just shy of 5 years. We're talking 4 years and 11 months just to get out of paying gratuity. And third, and this was a sneaky one, since gratuity was based on basic pay, many companies just made that number artificially low and packed the rest of the salary with allowances, which meant a much smaller payout for the employee. So, to fix these deep-seated problems, India didn't just patch the old law. It basically rebooted the entire system. This came in the form of the Code on Social Security, 2020, and it introduced 3 absolute game-changing upgrades to how gratuity works. The first game changer went straight for that unfair loophole. It directly targeted the way contract workers were being treated, and it set out to close that 5-year trap once and for all. I mean, this comparison really says it all. Under the old law, if you had a 3-year contract, you got nothing, 0. But under the new code, the 5-year rule is completely waived for fixed-term employees. Now, as long as you've worked for at least 1 year, you get a pro rata gratuity. That means you get a payout that's proportional to the time you served. This is a massive change that finally rewards short-term workers for their contributions. The second major upgrade was a big one.
It was an acknowledgement that work doesn't just happen in factories anymore. It was finally time to bring India's huge and growing gig economy into the social security system. So, for the first time ever in Indian law, gig and platform workers are officially recognized. The law now says that digital platforms, your ride-sharing apps, your food delivery services, they have to contribute 1 to 2% of their annual turnover into a national social security fund. This fund will then provide benefits like disability cover and other kinds of assistance to these workers, creating a real safety net where, frankly, there was nothing before. And now, for the third, and maybe the most financially disruptive change of all. This is a rule that completely re-engineers how salaries are structured across the entire country. We're talking about the 50% wage rule. This visual explains it perfectly. Before, a company could make your basic pay just, say, 30% of your total salary, and the other 70% would be allowances that didn't count towards gratuity. Well, the new mandate makes that illegal. Now, your basic pay has to be at least 50% of your total compensation. The days of artificially low basic pay are officially over. So here's how this totally redefines wages. The new law says that if your allowances add up to more than 50% of your total pay, that extra amount gets legally added back into your wages for the gratuity calculation. The impact of this is huge. It stops companies from gaming the system, and it's going to lead to significantly higher and much fairer gratuity payouts for pretty much every employee in the country. So with all these massive legal changes, what's the new reality on the ground? Let's take a look at what this really means day to day for both employees and employers. When it comes to compliance, the whole system has been modernized. The old way of doing things, the physical inspections, often called the Inspector Raj, is being replaced. The new system is all about digital returns and a new role called the Inspector cum Facilitator. Their job is to actually advise and help companies comply, not just to penalize them. It's a big shift towards making compliance easier and way more transparent. Now, for businesses, these are the key things to watch out for. These are the top 3 mistakes you can make in the new system. Number 1, failing to restructure your salaries to meet that 50% rule. That's going to lead to huge penalties. Number 2, delaying the payout. That 30-day rule is ironclad. Holding money back for some internal clearance is illegal and will automatically trigger interest payments. And number 3, companies now have to use formal, complex statistical projections called actuarial methods to calculate their future gratuity liabilities, not just simple guesswork. This quote from the source material really sums up the whole point of this Great Reset. It's a balancing act. The goal was to seriously enhance the social safety net for a workforce that is way more dynamic than ever before, while also trying to simplify things for businesses through digitization. These reforms are, without a doubt, the biggest step forward for worker security in India in half a century. They tackle the gig economy, contract work, and those financial loopholes head-on. But they also raise one final, really important question. As technology and the very nature of work keep evolving at lightning speed, is this new safety net built to last? Or is this just the beginning of another 50-year cycle of change? ग्रेच्युटी, ये शब्द नौकरी करने वाले लोगों ने जरूर सुना होगा। ये उनके वित्तीय सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर क्या ये हमेशा से एक गारंटीड अधिकार था? नहीं। तो आज हम इसी सफर को समझेंगे कि कैसे ग्रेच्युटी एक मालिक के तोहफे से कर्मचारी का एक पक्का हक बन गई। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि ग्रेच्युटी कानून का पूरा इतिहास इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब नौकरी छोड़ते वक्त जो पैसा मिलता है वो कंपनी की मेहरबानी है या फिर सालों की मेहनत से कमाया हुआ अधिकार? तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। देखिए, ग्रेच्युटी हमेशा से कोई अधिकार नहीं था। इसे तो बाकायदा कानूनी और सामाजिक लड़ाइयों के जरिए जीतना पड़ा है।
तो ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से भी पहले। उस वक्त ग्रेच्युटी बस मालिक की मर्जी पर दिया जाने वाला एक तोहफा था। फिर 1970 में केरला ने पहल की और एक राज्य कानून बनाकर इसे एक फॉर्मल पेमेंट का दर्जा दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अलग अलग राज्यों के अपने अपने कानून थे, जिससे बड़ा कंफ्यूजन था। बस इसी को खत्म करने के लिए 1972 में एक नेशनल कानून लाया गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जिसने पूरे देश के लिए नियम एक जैसे कर दिए। और फिर इस बदलाव पर आखिरी और सबसे मजबूत मोहर लगाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इस ऐतिहासिक फैसले ने एकदम साफ कर दिया कि भाई ग्रेच्युटी कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि ये तो एक कर्मचारी का कमाया हुआ एक पक्का कानूनी हक है। तो अब जरा गहराई से देखते हैं उस कानून को जिसने करीब करीब आधी सदी यानी 50 साल तक भारत में ग्रेच्युटी के नियम तय किए। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1972 के ग्रेच्युटी एक्ट की। इस कानून की पूरी इमारत एक कॉन्सेप्ट पर टिकी थी, निरंतर सेवा या कंटिन्यूअस सर्विस। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई रोज ऑफिस आ रहा है, नहीं। इसमें बीमारी की छुट्टी, कोई मंजूर की हुई छुट्टी, यहाँ तक कि कानूनी हड़ताल से हुई गैर मौजूदगी भी शामिल थी। सीधी सी बात है, अगर किसी ने साल में 240 दिन काम कर लिया तो उसे निरंतर सेवा में ही माना जाता था। अच्छा, तो ये कैलकुलेट कैसे होती थी? इसके लिए एक सीधा साधा सा फॉर्मूला था। अब ये जो 15/26 है ना, इसका मतलब है महीने के 26 कामकाजी दिनों में से 15 दिन की सैलरी। बस इसी को गुणा कर देते थे नौकरी के कुल सालों से और आखिरी महीने की सैलरी से। इस पुराने सिस्टम में कुछ और भी जरूरी बातें थीं, जैसे ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल नौकरी करना जरूरी था। हाँ, एक बात थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए या कोई विकलांगता हो जाए तो ये 5 साल वाला नियम लागू नहीं होता था। हिसाब किताब सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर होता था, और टैक्स फ्री पेमेंट की एक ऊपरी लिमिट थी 20 लाख रुपए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ सेट था तो 50 साल पुराने इस कानून को बदलने की नौबत ही क्यों आई? वजह सीधी थी, जमाना बदल गया था, काम करने के तरीके बदल गए थे, लेकिन हमारा कानून वहीं का वहीं खड़ा था। धीरे धीरे इस पुराने सिस्टम की दरारें साफ दिखने लगी। गिग इकोनॉमी आ गई, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ गए। इनके बारे में तो कानून में कुछ लिखा ही नहीं था। कंपनियां भी 5 साल वाले नियम से बचने के लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करने लगी थी। और तो और सैलरी स्ट्रक्चर में भी खेल होने लगा। बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस बढ़ा दिए जाते थे ताकि ग्रेच्युटी कम देनी पड़े। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नए और मॉडर्न सिस्टम की जरूरत महसूस हुई, और वो सिस्टम आया भी। और वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसे लाया ही इसलिए गया ताकि 1972 के पुराने पड़ चुके कानून को रिप्लेस किया जा सके। जब ये कोड पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो ये इंडियन लेबर लॉ की दुनिया में एक बिफोर और आफ्टर वाला मोमेंट होगा। इस नए कोड ने कितना बड़ा फर्क पैदा किया, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। पुराने कानून के तहत अगर किसी ने 21 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे ग्रेच्युटी में मिलता था 0। लेकिन 2020 के नए कोड में वही कर्मचारी अब प्रो रैटा बेसिस पर, मतलब अपने काम के समय के अनुपात में ग्रेच्युटी का हकदार है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए सच में गेम चेंजर है। अब आते हैं इस नए कोड के सबसे क्रांतिकारी बदलाव पर। इसे कहते हैं 50% वेतन नियम। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखे और अलाउंस बढ़ाकर ग्रेच्युटी कम कर देती थी। अब नए कोड ने ये रास्ता ही बंद कर दिया। नियम यह है कि बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर कुल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए, और अगर अलाउंस ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा हिस्से को भी बेसिक में जोड़कर ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाएगी। सीधा मतलब ज्यादा ग्रेच्युटी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई मॉडर्न बदलाव हुए हैं। जैसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक नए सोशल सिक्योरिटी फंड के जरिए सुरक्षा दी गई है। कागजी रजिस्ट्रों का झंझट खत्म, सब कुछ डिजिटल हो गया। इंस्पेक्टर का रोल अब सजा देने से ज्यादा सलाह देने वाला यानी एक फैसिलिटेटर का हो गया है, और छोटी मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इन सब कानूनी बदलावों का जमीन पर क्या असर होगा, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए इसकी क्या मायने हैं? चलिए अब इससे समझते हैं। कर्मचारियों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। ग्रेच्युटी का हक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। फिक्स टर्म कर्मचारियों को अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी मिलेगी। 50% वेतन नियम के कारण ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ने की संभावना है, और गिग वर्कर्स को भी पहली बार सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की। उन्हें अपने सैलरी स्ट्रक्चर को नए 50% नियम के हिसाब से बदलना होगा, जिससे उनकी वित्तीय देनदारी बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल सिस्टम से कंप्लायंस आसान हो जाएगा और छोटी मोटी गलतियों के लिए जेल का खतरा भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नया कोड एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ ये आज के दौर के वर्कफोर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ ये कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान बना रहा है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम देख रहे हैं कि काम का तरीका, काम की प्रकृति, सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसे में सामाजिक सुरक्षा के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
इस विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, कोर्ट के पुराने फैसलों और नए कानूनी मसौदों का ना एक बहुत बड़ा अंबार है। इन सारे स्रोतों का निचोड़ निकालकर आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने भारत में काम करने वाले हर इंसान के वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जी, और ये जो विषय है ना, ग्रेच्युटी, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी जरूर लगता है, लेकिन इसका सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ता है जो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य विषय ग्रेच्युटी ही है। मतलब 1972 के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से लेकर 21 नवंबर 2025 को लागू हुए नए और बहुचर्चित कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 तक की पूरी यात्रा, जिसे हम शॉर्ट में एसएस कोड भी कहते हैं। हाँ, एसएस कोड। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे एक रिटायरमेंट गिफ्ट जो पूरी तरह से नियोक्ता की दया पर निर्भर था, वो एक अनिवार्य कानूनी अधिकार में कैसे बदल गया। सही कहा। और साथ ही इन भारी भरकम दस्तावेजों के आधार पर हम ये भी समझेंगे कि इस नए डिजिटल युग, गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स के लिए 2025 के इन ऐतिहासिक बदलावों के असल मायने क्या हैं। ये सफर सच में बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाला है। जब हम इन कानूनी दस्तावेजों के न ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से उतरते हैं तो इस विषय की असली अहमियत समझ में आती है। चलिए इसे समझते हैं। अगर हम 1972 से पहले के दौर में जाएं तो ग्रेच्युटी की क्या स्थिति थी? देखिए, उस समय आम कानून या कॉमन लॉ के नजरिए से ग्रेच्युटी कोई अधिकार था ही नहीं। इसे केवल एक दान या बॉस की ओर से दिया जाने वाला एक वित्तीय उपहार माना जाता था। मतलब एक कर्मचारी अपनी जवानी और जिंदगी के इतने अहम साल किसी कारखाने या कंपनी को दे देता था, और रिटायरमेंट के वक्त उसे कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से मालिक के मूड और उसकी उदारता पर निर्भर करता था। ये एक मेहरबानी थी, कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी दिन बॉस का मूड अच्छा है तो रिटायरमेंट पे एक बड़ा चेक मिल गया। हाँ। और अगर किसी बात पे थोड़ी सी भी अनबन हो गई तो इंसान दशकों की मेहनत के बाद भी खाली हाथ घर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही होता था। ये व्यवस्था के नाम पर एक बहुत बड़ी अराजकता थी। दस्तावेजों में इस बात का साफ जिक्र है कि इस पूरी सोच को बदलने में ट्रेड यूनियनों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो आखिर ये स्थिति पलटी कैसे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये बदलाव किसी एक सरकारी आदेश से रातों रात नहीं आ गया था। इसके पीछे हमारी न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला है, इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन का मामला। जी बिल्कुल। इस एक मुकदमे ने कॉर्पोरेट जगत की पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रेच्युटी कोई खैरात नहीं है। मतलब जब कोई कर्मचारी लंबे समय तक बिना किसी दाग के अपनी सेवाएं देता है तो वो रिटायरमेंट पर एक निश्चित धनराशि पाने का कानूनी हकदार बन जाता है। एकदम सही। इस फैसले ने ग्रेच्युटी को मालिक की चैरिटी के दर्जे से उठाकर कर्मचारी के वैधानिक अधिकार के सिंहासन पर बिठा दिया। और कानूनी इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि राज्यों के स्तर पर भी इस दिशा में काफी हलचल हो रही थी। सबसे पहले 1970 में केरल ने पहल की थी। हाँ, केरला इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। वैचारिक रूप से ये एक बहुत ही शानदार कदम था, लेकिन जमीन पर इसने एक नई प्रशासनिक मुसीबत खड़ी कर दी। वो कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक फैक्ट्री केरला में है और एक ब्रांच दिल्ली में है। अब केरला वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अधिकार मिल गया, लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिला। ओह, मतलब कर्मचारियों के ट्रांसफर होते ही नियम बदल जाते थे। बिल्कुल। इस विरोधाभास और भ्रम ने कंपनियों के मानव संसाधन या एचआर विभागों की नींद उड़ा दी। इसी राष्ट्रव्यापी भ्रम को खत्म करने के लिए अंततः केंद्र सरकार को दखल देना ही पड़ा। और उसी दखल का नतीजा था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसे 16 सितंबर 1972 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। शुरुआत में बस जम्मू कश्मीर के बागानों और बंदरगाहों को छोड़ा गया था। हाँ, बाकी पूरे भारत के कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, रेलवे और दुकानों के लिए एक समान नियम बन गया। इस कानून को पढ़ते हुए ना मुझे एक नियम बहुत ही रोचक लगा, जिसे कानूनी भाषा में अपरिवर्तनीय प्रयोज्यता या अनऑल्टरेबल एप्लीकेबिलिटी कहा गया है। जी, ये एक बहुत ही मजबूत प्रावधान है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी कंपनी या दुकान में पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन कर्मचारियों की संख्या 10 तक पहुंच गई तो वो संस्था हमेशा के लिए इस कानून के शिकंजे में आ जाएगी। ये प्रावधान दरअसल एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था। कानून बनाने वालों को पता था कि कंपनियां पैसे बचाने के लिए क्या चालाकी कर सकती हैं। हाँ, वो ग्रेच्युटी देने से ठीक पहले कागजों पर अपने कर्मचारियों की संख्या 10 से कम करके 9 या 8 दिखा देती। बिल्कुल, लेकिन इस नियम ने यह तय कर दिया कि एक बार दायरा लागू हो गया तो भले ही भविष्य में कंपनी में सिर्फ 2 कर्मचारी ही क्यों ना बचें, ग्रेच्युटी का नियम उन पर हमेशा लागू रहेगा। लेकिन इस अधिकार को पाने के लिए भी एक बाधा पार करनी होती थी, जिसे हम कंटिन्यूअस सर्विस या निरंतर सेवा का नियम कहते हैं। जी, सेक्शन 2A के तहत किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हकदार बनने के लिए कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा देनी होती है। यहाँ मैं थोड़ा विपरीत नजरिया रखना चाहूंगी।
आज के दौर में जब लोग हर 2-2.5 साल में अपनी नौकरी बदल लेते हैं तो क्या ये 5 साल का नियम थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? अगर आज के नजरिए से देखें तो हाँ, लेकिन 1970 के दशक में जब लोग एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी गुजार देते थे तब ये बहुत तार्किक था। ग्रेच्युटी मूल रूप से वफादारी और दीर्घकालिक जुड़ाव का इनाम था। लेकिन हाँ, निरंतर का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कर्मचारी ने एक भी दिन की छुट्टी न ली हो। बीमारी, दुर्घटना, अधिकृत छुट्टी, ले ऑफ या किसी कानूनी हड़ताल के कारण ये निरंतरता टूटती नहीं है। और अगर किसी कारणवश किसी कर्मचारी ने साल के पूरे 365 दिन काम नहीं किया है तो कानून ने वहां भी राहत दी है ना? बिल्कुल दी है। खदानों में जमीन के नीचे काम करने वालों के लिए 190 दिन और बाकी सामान्य नौकरियों के लिए 240 दिनों की सेवा को ही पूरा 1 साल मान लिया जाता है। अब चूंकि हमने गणित की बात छेड़ ही दी है तो जरा उस चर्चित फॉर्मूले पर भी नजर डालते हैं जिससे ये तय होता है कि कर्मचारी के हाथ में असल में कितने पैसे आएंगे। 15/26 वाला फॉर्मूला। हाँ, कानून में जो फॉर्मूला है वो है 15/26 गुणा अंतिम वेतन, जिसमें बेसिक पे और डीए शामिल है, गुणा नौकरी के साल। अब किसी भी आम इंसान के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि महीने में तो 30 दिन होते हैं, फिर यहाँ 26 का आंकड़ा क्यों? यही तो कानूनी पेंच है। ये 26 का आंकड़ा असल में कर्मचारियों के हक में काम करता है। वो कैसे? अदालतों ने ये माना कि एक महीने में औसतन 4 रविवार होते हैं जो छुट्टियां होती हैं। इसलिए जब हम दैनिक वेतन या डेली वेज निकालते हैं तो 30 की जगह 26 वर्किंग डेज से भाग देना ज्यादा न्याय संगत है। अच्छा, मतलब 30 से भाग देने पर दैनिक वेतन कम आता, लेकिन 26 से भाग देने पर दैनिक वेतन थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल, जिससे अंततः ग्रेच्युटी की कुल राशि ज्यादा बनती है। एक सटीक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बेसिक और डीए 30,000 रुपए है और कर्मचारी ने 12 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 13 साल मान लिया जाएगा? जी, 6 महीने से ऊपर को 1 साल मान लेते हैं तो 15 से 26 के हिसाब से उसकी ग्रेच्युटी 2,25,000 रुपए बनेगी। और हाँ, अधिकतम सीमा अब 20 लाख रुपए हो गई है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फायदा है, लेकिन जहां नियम होते हैं वहां उन्हें तोड़ने के तरीके भी निकाल लिए जाते हैं। स्रोतों से साफ पता चलता है कि कंपनियों ने पैसा रोकने के लिए बहुत से बहाने खोज निकाले थे। बहुत सी कंपनियां तकनीकी और कागजी कमियों का फायदा उठाती थीं। सबसे आम बहाना होता था कि कर्मचारी ने फॉर्म 1 यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, या फिर एचआर डिपार्टमेंट ये कहकर फाइल अटका देता था कि अभी नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिला है। मतलब दशकों की मेहनत के बाद मिलने वाले लाखों रुपए सिर्फ एक फॉर्म न भरने के कारण रोक लिए जाते थे। जी हाँ, ये कर्मचारियों का खुला मानसिक उत्पीड़न था और ये तब तक चला जब तक लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का ऐतिहासिक फैसला नहीं आ गया। इस मुकदमे ने तो पूरी नौकरशाही को खत्म कर दिया। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जैसे ही कर्मचारी कंपनी छोड़ता है, नियोक्ता की जिम्मेदारी उसी पल से शुरू हो जाती है। हाँ, ग्रेच्युटी देने की 30 दिन की उल्टी गिनती एग्जिट वाले दिन से शुरू हो जाएगी। किसी फॉर्म का इंतजार नहीं किया जा सकता। और अगर 30 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो नियोक्ता को उस देरी के लिए साधारण ब्याज देना होगा, जो अक्सर 10% सालाना की दर से तय किया जाता है। इससे कंपनियों में एक डर पैदा हुआ। यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि कानून सिर्फ सख्त ही नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी था। जो 5 साल की निरंतर सेवा की शर्त है, उसमें एक बहुत ही संवेदनशील अपवाद मौजूद है। आप मृत्यु और विकलांगता वाले नियम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अगर दुर्भाग्यवश नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण वो विकलांग हो जाता है तो ये 5 साल का कड़ा नियम उसी क्षण प्रभावहीन हो जाता है। ये सचमुच एक प्रगतिशील सोच थी। ऐसे दुखद समय में परिवार को 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर किसी ने सिर्फ 6 महीने भी काम किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा तुरंत नॉमिनी को मिल जाता है। विकलांगता के मामले में भी अगर काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो ये वित्तीय सहारा तुरंत दिया जाता है। ये 1972 के कानून की ताकत थी, लेकिन समय के साथ दुनिया बदल गई। आज हम स्मार्टफोन, गिग इकोनॉमी और वर्क फ्रॉम होम के युग में जी रहे हैं। 1972 का वो कानून इस आधुनिक कार्यशैली के सामने हांफने लगा था। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए 21 नवंबर 2025 की वो ऐतिहासिक तारीख आई जब भारत सरकार ने 29 पुराने लेबर कानूनों को रद्द करके 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए, जिनमें सबसे क्रांतिकारी है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये आजाद भारत के श्रम कानूनों में सबसे बड़ा भूचाल है। 1972 का कानून इस बुनियादी सोच पर खड़ा था कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक स्थायी संबंध है। लेकिन आज के समय में लाखों लोग जो स्विगी, जोमैटो, उबेर या ओला जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं, वे तकनीकी रूप से कर्मचारी हैं ही नहीं। वे स्वतंत्र ठेकेदार या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं और इसी तकनीकी परिभाषा के कारण उन्हें दशकों तक हर तरह की सामाजिक सुरक्षा से बाहर रखा गया। लेकिन नए एसएस कोड के दस्तावेज पढ़कर मैं वाकई हैरान रह गई। इतिहास में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक मजबूत कानूनी पहचान मिली है। जी, और स्रोतों में एक बहुत ही बड़ी बात लिखी है। अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक विशेष सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुझे ये समझना है कि ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगा। ये एक जटिल लेकिन जरूरी व्यवस्था है। कंपनियों के टर्नओवर का 1 से 2% कोई छोटी रकम नहीं होती। ये करोड़ों अरबों रुपए का फंड है। इसका प्रबंधन एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड करेगा ना? जी, और इस पैसे का इस्तेमाल इन गिग वर्कर्स को जीवन बीमा, अपंगता लाभ, दुर्घटना बीमा और यहाँ तक कि मातृत्व लाभ देने के लिए किया जाएगा। ये नियोक्ता कर्मचारी के पुराने ढांचे को तोड़कर एक नया मॉडल खड़ा कर रहा है। ये तो गिग वर्कर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और सिर्फ गिग वर्कर्स ही नहीं, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है उनके लिए भी ये नया कानून एक अनुपातिक क्रांति लेकर आया है, जिसे हम प्रो राटा रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, पहले की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा शोषण छिपा हुआ था। कंपनियां लोगों को 3 या 4 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रखती थीं। जैसे ही कोई कर्मचारी 4 साल 11 महीने पूरे करता था, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता था, ताकि 5 साल पूरे ना हो और उसे ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। ये पूरी तरह से अनैतिक था, लेकिन पुराने कानून के तहत वैध था। लेकिन नए एसएस कोड ने कंपनियों के इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए वो 5 साल की शर्त हटा दी गई है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल भी काम किया है और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसे प्रो राटा यानी अनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी। 21 महीने काम किया है तो 21 महीने का पैसा मिलेगा। और मजेदार बात यह है कि पत्रकारों के लिए ये नियमित सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। ये सब तो राहत की बातें थी, लेकिन इन नए कोड्स में एक ऐसा नियम भी है जिसने कॉर्पोरेट दुनिया के बोर्ड रूम्स में हड़कंप मचा दिया है। वो है नया 50% वेज रूल। ओ हाँ, सीटीसी के ढांचे को लेकर जो बात दस्तावेजों में है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करती हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी आपको खाने की एक बड़ी सी थाली दे रही है। उस थाली में जो मुख्य रोटी है वो आपकी बेसिक सैलरी है, और बाकी के जो ढेरों व्यंजन हैं वो आपके भत्ते या अलाउंस हैं, जैसे एचआरए, कन्वेंस, बोनस। सही है। सालों से कंपनियां क्या कर रही थीं कि वो थाली में रोटी तो बहुत छोटी सी रखती थी, शायद सिर्फ 20%, और बाकी 80% हिस्सा अन्य व्यंजनों से भर देती थी। और ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि ग्रेच्युटी और पीएफ की गणना सिर्फ उस रोटी यानी बेसिक सैलरी पर होती है। बेसिक सैलरी जितनी कम होगी, कंपनी को अपनी जेब से उतना ही कम पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देनदारी से बचने का एक अचूक तरीका था। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि आप थाली में चाहे जितने व्यंजन रखें, लेकिन कम से कम आधी थाली में रोटी होनी ही चाहिए। यानी नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी के सभी भत्ते उसकी कुल सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते। और अगर किसी की सीटीसी में एचआरए, बोनस आदि मिला के 50% से ऊपर जा रहे हैं, तो जो भी अतिरिक्त रकम होगी उसे जबरन बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इस एक नियम ने कंपनियों के मुख्य वित्तीय अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जरा सोचिए, जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी पहले 20,000 थी और कुल सैलरी 1 लाख थी, अब उसकी बेसिक सैलरी सीधे 50,000 मान ली जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि रिटायरमेंट के वक्त दी जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना अब 20,000 के बजाय 50,000 पर होगी। बिल्कुल, कंपनियों की बैलेंस शीट पर जो भविष्य की देनदारी है वो रातों रात दोगुनी या तिगुनी हो गई है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर कंपनियों पर इतना बड़ा वित्तीय बोझ आ रहा है, तो कंप्लायंस के मोर्चे पर क्या बदलाव हुए हैं? क्या कागजी कार्रवाई भी बढ़ गई है? रोचक बात यह है कि कागजी कार्रवाई घट गई है, लेकिन उसकी गंभीरता बहुत बढ़ गई है। पहले फॉर्म ए, फॉर्म सी, फॉर्म एफ जैसे दर्जनों कागज भरने पड़ते थे। अब वो सब खत्म करके सिस्टम को एक सिंगल डिजिटल यूनिफाइड एनुअल रिटर्न में बदल दिया गया है। जी, सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी है। और क्या इंस्पेक्टर राज का वो पुराना डर, जहां सरकारी अधिकारी छोटी छोटी बातों पर परेशान करते थे, वो भी कम हुआ है? क्योंकि स्रोतों में अपराध मुक्तिकरण या डीक्रिमिनलाइजेशन शब्द का काफी इस्तेमाल हुआ है। ये एक दोधारी तलवार है। सरकार ने इंस्पेक्टर राज को खत्म करके उन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नाम दिया है। मतलब सुविधा प्रदाता? हाँ, छोटी मोटी कागजी गलतियों के लिए जेल की सजा का जो प्रावधान 1972 के कानून में था, उसे हटा दिया गया है। अब एचआर मैनेजरों को फॉर्म में तारीख गलत लिखने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। राहत है, लेकिन वित्तीय दंड के मोर्चे पर सरकार बहुत सख्त हो गई है। सजा कम की गई है, लेकिन जुर्माना बहुत भारी कर दिया गया है। कितना भारी? पहले जो अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए हुआ करता था, उसे नए कोड में बढ़ाकर सीधे 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। बाप रे, 50,000 से सीधे 20 लाख? शायद यही कारण है कि इन दस्तावेजों में बार बार एक्चुरियल साइंस या बीमांकिक विज्ञान का जिक्र आता है। हाँ, कंपनियों को अब भविष्य की देनदारियों का हिसाब लगाने के लिए ना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट या पीयूसी पद्धति का उपयोग करना होता है। ये तो पढ़ने में किसी बहुत ही जटिल रॉकेट साइंस जैसा लगता है। इसे आप कॉर्पोरेट जगत की भविष्यवाणी करने वाली जादुई गेंद समझ सकती हैं। पीयूसी पद्धति में एक्चुअली इसको ये अनुमान लगाना होता है कि भविष्य में कर्मचारियों की मृत्यु दर क्या रहेगी, कितने लोग नौकरी छोड़कर जाएंगे, जिसे एट्रिशन रेट कहते हैं। बिल्कुल, और आने वाले 10-20 सालों में महंगाई के हिसाब से सैलरी किस दर से बढ़ेगी। इन सभी जटिल अनुमानों के आधार पर कंपनियों को आज ही अपनी बैलेंस शीट में करोड़ों रुपए अलग से सुरक्षित रखने पड़ते हैं, ताकि 15 साल बाद जब कोई कर्मचारी अपना हक मांगे तो कंपनी ये ना कह सके कि हमारे पास फंड नहीं है। एकदम सही।
ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 1972 के उस कानून ने, जो कभी सिर्फ एक मनचाहा उपहार हुआ करता था, लाखों फैक्ट्री और दफ्तर के कर्मचारियों के बुढ़ापे को एक ठोस कानूनी सुरक्षा दी। और अब 2025 में लागू हुए इन नए सोशल सिक्योरिटी कोड्स ने उस सुरक्षा जाल को आधुनिक, अस्थिर और गिग अर्थव्यवस्था वाले वर्कफोर्स तक फैला दिया है। फिक्स टर्म कर्मचारियों का बरसों पुराना शोषण रुका है और डिजिटल सिस्टम ने पूरी प्रक्रिया में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता ला दी है। लेकिन ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? देखिए, नए 50% वेज रूल के कारण जब कंपनियों को मजबूरी में बेसिक सैलरी बढ़ानी पड़ रही है, तो जाहिर है कि उस बढ़ी हुई बेसिक पर पीएफ का योगदान भी बढ़ेगा और ग्रेजुइटी की कटौती भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। अब कंपनियों का सीटीसी बजट तो उतना ही रहेगा, जिसका सीधा मतलब है कि भविष्य में लोगों के हाथ में आने वाली हर महीने की मासिक टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या ये कानून सिर्फ बुढ़ापा सुरक्षित नहीं कर रहा, बल्कि आज के खर्च करने के मनोविज्ञान को, हमारी आज की जीवन शैली को भी हमेशा के लिए बदल रहा है? क्या लंबी अवधि की बचत के नाम पर हम अपनी आज की क्रय शक्ति की बलि दे रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक और जमीनी हकीकत से जुड़ा सवाल है। क्या वर्तमान की जरूरतों से समझौता करके भविष्य को सुरक्षित करना सही है, या फिर ये एक जरूरी कड़वी दवा है जो हमें वित्तीय दरिद्रता से बचाएगी? इस पर तो आर्थिक और सामाजिक हलकों में काफी लंबी बहस हो सकती है। बिल्कुल। 1972 के ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर 2025 के डिजिटल युग के कानूनों तक के इस गहन विश्लेषण को आज यहीं विराम दिया जाता है। भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले विषयों के विस्तृत विश्लेषण के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए विदा।